Very good morning, students of class 10th. Here I am Poonam Prasad with the subject of Political Science, chapter number 7, Outcomes of Democracy. The students, yesterday we were dealing on the definition of democracy and one important question, why democracy is better than any other form of government. Children, here we are going towards further for the chapter, and here the topic to be covered is assessment of the outcomes of democracy leading with the accountability, responsive and legitimate government. Students, as we have already learnt that what is outcomes meant about. Outcomes का मतलब होता है result. Whatever we have learned from the democracy, what we have know from this sort of government, why the government is so important, why the government is highly acceptable in the worldwide, it's just because of its result. So in the particular topic, if we are talking about that how do we assess the democracy's outcomes, it leads towards accountable, responsive and legitimate government, then it goes towards the economic growth and development, reduction of inequality and poverty, accommodation of social diversity, dignity and freedom of the citizen. All these points are part of how do we assess the democracy's outcome. All the others are called to be the characteristics or the features of the outcomes of democracy. Children, if we are assessing the outcomes of democracy, the outcomes of democracy is having some democratic government. If we are talking democratic government, we already learned about that the democratic government is having a formal constitution. They are having a political party system, the party system which are ruling in terms of ruling government as in terms of opposition. Regular elections, the provisions of regular elections, it means elections on time, rights and duties of the citizens, democratic rights and democratic duties of the citizens, which supports this form of government. These democracies are different, children, from each other. We are saying that yes, the Pakistan is also a democratic government, but there the democratic government is entirely different from India. If you are talking about the democratic government of China, it is entirely different from India because of in terms of socio-economic and cultural structure of the country. If we are talking about, as I have already told you, if the democratic governments or the path towards democracies are different from countries to countries, the achievement of the democracies also vary from each other. अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव को अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज से अगर हम उनको कंपेयर करें तो इंडियाज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ quite true in terms of its principles. Students, sometimes we think that democracy can solve all our socio-economic and political problems. But this is not true. This is unjustified and unwarranted. This is a form of government which is liable to fulfill the expectations of its citizens, ability to solve the problems of the citizen. But Peter, just to think about that, the democratic government should be responsible towards to solve all the problems of its citizen, it is quite unjustified. बेटा ये महज एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का संचालन करना, अब फॉर एग्जाम्पल द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ देयर, पॉलिटिकल लीडर्स इज़ द प्राइम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी, लेकिन अगर वही नेतागण अगर करप्टेड हुए या भ्रष्ट हुए तो क्या हम एक भ्रष्टहीन समाज का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं? इट्स नॉट लाइक दैट. ये हमें समझना ज़रूरी है दैट डेमोक्रेसी इज़ जस्ट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बेटा, it only create the condition for achieving something. Achieving something means
achieving our expectations. It creates to fulfill the conditions in which the citizens can fulfill our expectations. The citizens can take advantages of these conditions and achieve their goal. For example, the education system is entirely open for both the girls as well as boys. लेकिन अगर किसी कारण से गर्ल्स की फैमिली इज़ नॉट सपोर्ट गर्ल्स टू गेट द एजुकेशन, तो इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करेगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें उन्होंने प्रेजेंट करके दी हैं, बट उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रेजेंट किया है, बट अल्टीमेटली वी ओनली द सिटीजन can have a, you can say, responsibility towards its citizens, towards its people, towards its government too. हम डेमोक्रेसी को तब तक नहीं स्थापित कर सकते हैं जब तक कि हम एज अ सिटीजन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस, राइट बेटा? तो गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स या डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच प्रोवाइड्स ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन हमें तय करना है एज अ सिटीजन दैट हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे एक्सेप्ट या अवेल करें. फाइन बेटा? So this is all about the assessment of the outcomes of democracy. Children, in the particular topic we are going towards, the assessment of outcomes of democracies are divided into the three parts. One is called as the political outcomes. In political outcomes we have to go through with the government which is accountable. I am talking about democratic government, which is accountable, which is responsive, and which is legitimate government, right? If we are talking about the economic outcomes, it gives the you can say result in terms of economic growth and development of a country in our democratic regimes. Also the reduction of inequality and poverty. यानी एक तरह से ये रिपोर्ट कार्ड दे रहा है अबाउट कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसा है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ पॉवर्टी, ये कंडीशन कैसी है डेमोक्रेटिक रिजीम से, इसको कंपेयर किया जाएगा बेटा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, राइट? देन द थर्ड वन इज़ कॉल्ड एज द सोशल आउटकम्स. इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से सोशल डाइवर्सिटी को प्योरली एकोमोडेट किया गया है विदाउट एनी सोशल कन्फ्लिक्ट्स, and it also enhances the dignity and freedom of the citizen. So there are the three basic outcomes of the assessments of democracy. अगर हम बात करें तो इसमें first one is political outcome. So children, we are talking about the political outcomes, right? Students, अगर हम political outcomes की बात करते हैं तो it is important in terms of accountability, legitimacy, accountability, responsive and legitimacy. तीनों का मतलब मैं बता दे रही हूँ. दैट इज़ फर्स्ट accountability, सिंपल शब्दों में दैट द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू इट्स citizen, right? Responsive means the citizens have some expectations and the democratic government have a duty to fulfill all the expectation of its citizen. So it is, the democratic government is responsive, fine. And if we are talking about the legitimacy, it means that the people are here to elect the government. It is participating in the government's decision. Also the government whatsoever is doing its duties are under the limit of your you can say constitution, not beyond of it. So we are comparing it with all these matters, right? So if we are talking about in terms of efficiency and effectiveness of the government, then we are take the first one. It is called as the accountable government. Students, if we are talking about the expected outcomes का मतलब हो गया कि हम क्या सोचते हैं अकाउंटेबिलिटी के बारे में. आंसरेबल, क्योंकि हम ही ने चुना है गवर्नमेंट और नाउ द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू इट्स सिटीजन. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटा ये क्विक डिसीजन लेती है.
in terms to fulfill the desire of their own. यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है वो पब्लिक एक्सपेक्टेशन या सिटीजन एक्सपेक्टेशन की नहीं है बेटा, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स अगर कोई भी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने की बात करेगा तो वो करेगा उनके अपने स्वार्थ के लिए। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन वहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कोई भी कार्यों को पूरा करेगा या कोई भी डिसीजंस लेगा तो उसके दिमाग में सबसे पहले सोसाइटल सेंट्रिक होगा, यानी वो कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। तो अगर हम ये बात करें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स यू कैन से फंक्शंस, और जो भी डिसीजंस लेती है वो विद प्रॉपरली डेलिबरेशंस एंड नेगोशिएशंस के साथ, एंड दीज डिसीजंस आर हाईली एक्सेप्टेबल टू द सिटीजन्स। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, पीपल हैव द राइट्स and means to examine the process of decision making children because it is transparent. जो भी कार्य प्रणाली या डिसीजन लेता है that should be known to its citizen. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने अगर हम टैक्सेस पे कर रहे हैं तो टैक्सेस कहाँ जा रहा है, that should be known to the government, that should be known to the citizens' children. So ultimately accountable government, it develops a mechanism for the citizens to take part in decision making whenever they think to be fit, either in terms of monetization, demonetization, money matters, you can say। हाँ, कुछ हद तक हम बात कर सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री वहाँ पे गवर्नमेंट खुलकर अपनी बात अपने सिटीजन्स के सामने नहीं रखती। लेकिन मनी मैटर्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, कंट्री के डेवलपमेंट की बात हो, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात हो, इंटरनेशनल बॉन्डेज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, हर के लिए हम कहेंगे कि वो गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल है टू इट्स सिटीजन। और यही कारण होता है कि जब गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है तो कई बार उसको समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, और यही समय का लगना ये बताता है कि वो कार्यों को कितना ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कितना ज़्यादा एफिशिएंटली वो वर्क कर रहा है। तो अल्टीमेटली आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो एक सड़क बनाने के लिए 4 साल लग जाते हैं। करेक्ट, मैंने फिर कहा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म, दोनों को, सिटीजन्स को भी और लीडर्स को भी। लीडर्स अगर अपना काम नहीं करेगा तो अगली बार उन लीडर्स को या उस पार्टी को दोबारा से सरकार नहीं बनाने देगा। कौन? हम एज अ जनता। इसीलिए एक हमारी एक्सपेक्टेशंस परफॉर्मेंस है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस आउटकम्स हमने बताया। अब अगर हम बात करें कि एक्चुअली में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या काम करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ अ ग्रेटर सक्सेस इन होल्डिंग द रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस। बेटा वो सेटअप करती है कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट, ओपनली वो लोगों को बात रखने की बात करती है, एक्सप्रेशंस रखने की बात करती है, but does not provide fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate। but बेटा ये प्रिंसिपल वाइज होता है, बट अगर हम प्रैक्टिकली कहें तो इसका परसेंटेज काफ़ी वेरी करेगा। हम कहते हैं कि द सोसाइटी शुड बी करप्शन फ्री, बट ऐसा नहीं है। करप्शन इज एग्जिस्टेड। द गवर्नमेंट द पॉलिटिकल लीडर शुड बी सोशल सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि सेल्फ सेंट्रिक, बट ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज आर फर्स्ट सेल्फ सेंट्रिक देन सोशल सेंट्रिक। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हमारे आउटकम्स क्या हैं, और हमारा एक्चुअल जो परफॉर्मेंस जो सरकार के द्वारा होता है, देन वी हैव टू कंपेयर इट आउट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट doesn't have a very good record, children,
when it comes to sharing the information with citizens. हाँ, अभी इंटरनेट की वजह से या मीडिया के ओपन होने की वजह से या सोशल जो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है या सोशल नेटवर्किंग है, उसके थ्रू हम लोगों को बहुत ज़्यादा हम या आरटीआई के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हम लोगों को सरकार से या सरकार की कार्य प्रणाली पे क्वेश्चनिंग करने का अधिकार है बेटा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। फिर मैंने कहा मनी मैटर्स के सब्जेक्ट्स पे या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के सब्जेक्ट्स पे, सोशल के सब्जेक्ट्स पे, कई तरीके के सब्जेक्ट्स पे सरकार शेयर करती है इन्फॉर्मेशन। लेकिन वहीं पे अगर वो डिफेंस के बारे में बात करेगी तो वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पस से वो उतनी ही इन्फॉर्मेशन लीक करेगी जितना इन्फॉर्मेशन जनता को जानने का अधिकार है। इज दैट क्लियर? हम ये कह सकते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन, द गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल, गवर्नमेंट हर एक काम करे और उसके बारे में सिटीजन्स को बताए, तो बेटा इट वोंट बी पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट, राइट चिल्ड्रन? फाइन। If we are talking about the government is responsive towards its citizens, yes, it is true beta, it is true. It is true in terms of कि हमारी expected outcomes क्या है हमारी सरकार से. It is the government should be ready, always ready to fulfill the needs and demands of the people, always ready. क्यों? क्योंकि हम ही ने सरकार बनाई है, तो सरकार हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल करें, और हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी करप्शन फ्री हो. बट ऐसा एक्चुअल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है. डेमोक्रेसी समटाइम्स फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल. जैसा मैंने एग्जांपल दिया, हमारी नीड है कि मेरे घर के सामने गार्बेज, इट्स अ हीप ऑफ गार्बेज इज़ देयर, वो हट जाए विद इन 2 to 3 days. लेकिन ऐसा नहीं होगा, हटने में महीनों लग जाएगा या सालों लग जाएगा, बार बार एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा. एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में घर तो बहुत अच्छे बने हैं लेकिन रोड बिल्कुल ख़राब बनी है, बहुत ख़राब है रोड. लोग जब बारिश होती है तो अच्छा खासा गली भर जाती है, लोगों के निकलने की मुश्किल हो जाती है, हालात बहुत पुअर है वहाँ के. इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, बहुत पुअर हालात हैं. एक्सपेक्टेशंस है कि सरकार बनाए, एप्लीकेशंस पे एप्लीकेशंस दिए जा रहे हैं, सरकार नहीं बना रही है. तो ये चीज़ें क्या है, समटाइम्स फ्रस्ट्रेट कर देती है लोगों की नीड्स को, और लोग भी फिर नेगेटिव हो जाते हैं टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक सरकार. लोग कहते हैं हटाओ यार, इससे अच्छा कोई व्यक्ति विशेष आके अगर इसको बना जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता. व्यक्ति विशेष का मतलब यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडर, जो कि स्ट्रॉन्ग लीडर है. ठीक. देन समटाइम्स इट इग्नोर्स द डिमांड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन. होता है, इसीलिए उनको टाइम टू टाइम रिकॉल किया जाता है, राइट टू रिकॉल के अंतर्गत. सर यू हैव प्रॉमिस्ड अस, बट आपने यू हैवंट फुलफिल द प्रोमिसेस येट. हम कहते हैं कि वी नीड अ करप्शन फ्री सोसाइटी, बट करप्शन इज इनबिल्ट इन द सोसाइटी. सो ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारे एक्सपेक्टेशंस कहीं और हैं बेटा, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट है. लेकिन फिर भी द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आर गवर्नमेंट, क्योंकि ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं दिया गया है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर फ्री फ्रॉम करप्शन, और इट कैन बी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल ईच एंड एवरी डिज़ायर ऑफ इट्स सिटीजन्स. बेटा ये कहीं नहीं दिया है. इसीलिए बेशक चाहे हमारी सरकार देर सबेर से ही काम करे, डिसीजंस लेने में टाइम ले, हम 5 एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, उसमें से 3 को फुलफिल करें, 2 छोड़ दें, फिर भी ये सरकार हमारी है. एंड रियली इट इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
और इस गवर्नमेंट के अंतर्गत वी फील फ्री टू बी एज अ सिटीजन चिल्ड्रन. The next very important is known as the legitimate government. Students, if we are talking about its expected outcomes, तो हम कहते हैं the democratic government is people's own government. In terms of talking about the legitimacy democratic government, most preferred है, it is a form of government children. Most preferred. बेशक ये स्लो है, बेशक ये लेस एफिशिएंट है, समटाइम्स अगर समटाइम्स ये नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाती है, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द पीपल्स ओन गवर्नमेंट. ड्यू टू दिस रीजन दैट दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज हाईली सपोर्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने की बात है वो काफ़ी ज़्यादा है, सपोर्ट काफ़ी मिला है इन टर्म्स ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम बात करते हैं इन आर साउथ एशियन कंट्री, द सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम बोथ द डेमोक्रेटिक एज वेल एज नॉन डेमोक्रेटिक रीजन्स ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज. People would always prefer to be ruled by the representative that was elected, that are elected by them. It is ruled by that has been elected by them. Democratic has been successful in generating its own support, and its positive outcome of democracy, it cannot be ignored. अगर हम ये कहें 100% वी कैन नॉट गिव 100% टू दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, लेकिन येस बेटा, इट इज़ फार मोर बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स. इसका क्रिटिकल एनालिसिस मैं आप लोगों से मैंने कल की आपकी क्लास में दिया था कि यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द इंडिया एंड अदर कंट्री विच आर नॉन डेमोक्रेटिक. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट the legitimacy of the government, then it is we can say that the government is formally recognized by the people better, and the government is liable to fulfill the expectations of its citizen, and it is accountable, it is answerable to its citizen, right children? So in tomorrow class I would like to take your economic outcomes beta, then social outcomes, and in the meantime kindly revise all the points, chote points hai. So what we have to learn in this topic is about the outcomes, right? And we are comparing it with the non-democratic regimes. Fine beta. Thank you children. Goodbye.